ક્વેસ્ટ કોર્પના મેનેજમેન્ટ જોડાયા છે આજે મારી સાથે. કંપનીના ગ્રુપ સીએફઓ રવિ વિશ્વनाथन जोड़ाई चुक्या है आगे बातचीत करवा माटे. सर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए. सबसे पहले वेरी गुड आफ्टरनून. शुरुआत में ओवरऑल ऑपरेशनल नंबर से करना चाह रही थी क्योंकि नियरली 19 to 20% का जंप देखा गया है. कैसा रहा परफॉर्मेंस इस क्वार्टर के दौरान? एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं कौन से फैक्टर सपोर्ट कर रहे थे, उसी से शुरुआत करें. इसको अभी एक Q3 का जो रिजल्ट हमने अनाउंस किया है, ये हमारी कंपनी की दिस इज रिकॉर्ड ब्रेकिंग एज फार एज रेवेन्यूज, EBITDA एंड PAT इज कंसर्न. और इससे पहले हमने कभी इतनी such good numbers we've actually never reported. So we've got in terms of revenues, there was a 31% year-on-year growth and a 14% quarter-on-quarter growth. PAT, EBITDA also grew by 19% year-on-year and about 14% quarter-on-quarter. And PAT also grew more than about 94% year-on-year growth we saw in PAT. So this has been the strongest quarter ever reported by the company. We saw a good pickup across all the three platforms and all the three segments. All the three segments, workforce management ho, ya operating asset management ho, या global tech solutions हो, all the ये तीनों segment, the growth has been very good. If at all, operating asset management का जो segment है, where we have facility, security, catering, and all these were a little depressed because work from home continued to be there. Offices are not back completely. Schools and education institutions are not back completely. So if at all, we did see some softness in operating asset management. Baki dono, whether it is workforce management or global tech solutions, were very strong and robust results for the quarter. अग्रीड सर. अच्छा, इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स क्या एक्सपेक्ट करूं मैं, क्योंकि ऑलरेडी आप बता रहे हैं कि रेवेन्यू के टर्म्स में एक परफॉर्मेंस अच्छा रहा है. इस बार नंबर्स 5.4% से घट के हम लोग 4.9% पर आते हुए देख रहे हैं. एक आइडिया कौन से बैंड में हम लोग रहते हुए देख पाएंगे? ये साल के अंत तक ईयर क्लोजर कैसे होगा? देखिए, हम लोग गाइडेंस नहीं देते, मगर हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जो हमने Q3 में देखा है उसी के हिसाब से ये क्वार्टर भी अच्छी होनी चाहिए. We will continue to maintain the same momentum into Q4. हम गाइडेंस नहीं देंगे, मगर हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि the results will be as good as the previous quarters. अग्रीड सर. अच्छा, उसके अलावा इन टर्म्स ऑफ सेगमेंटल परफॉर्मेंस में समझना चाह रही थी, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं सेगमेंटल परफॉर्मेंस में वर्कफोर्स मैनेजमेंट की तरफ से तकरीबन 34% का इजाफा रेवेन्यू टर्म्स में, और ग्लोबल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में भी 18% का मूव था. रेवेन्यू की ही बात कर रही हूँ मैं. और ऑपरेटिंग एसेट मैनेजमेंट में भी उतने ही क्वांटम में नियरली 35% का ग्रोथ देखा गया है. यहाँ से ग्रोथ टारगेट्स क्या रहेंगे? इंडिविजुअल सेक्टर वाइज भी बात करें तो देखिए, जब हम तो ये बोल के we have been saying this that we will be able to grow overall at 20% on a year-on-year basis. Minimum 20% is what we should be growing. इसमें global tech solutions का जो businesses है, वो उसका growth होगा 15 to 20% year-on-year. और बाकी and बाकी operating asset management and workforce management will be upwards of 20%. So और उसी के हिसाब से आप देख लो तो we will be able to maintain growth across all the three verticals. Global tech solutions between 15 and 20, and the other two verticals, workforce management and operating asset management, between upwards of 20%. अग्रीड सर. अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं समझना चाह रही थी, क्योंकि आपने मॉन्स्टर के लिए भी कुछ फंड्स रेज किए थे यहाँ से, तकरीबन 137 करोड़ जो वैल्यूएशन $100 मिलियन के अराउंड हो रहा है. ये फंड्स कहाँ डिप्लॉय होंगे, कैसे यूसेज करेंगे आप? इसके ऊपर मुझे एक आइडिया दे पाएँ अगर. करेक्ट. इसमें ज्यादा तरह से इसकी इन्वेस्टमेंट होगी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में और सेल्स एंड मार्केटिंग.
Sales and marketing, product development will account for almost about 85% of the total funds that we have raised. The remaining will go into general administrative, general office purposes, but up to 85 to 90% will go into product development, sales and marketing. अग्रीड सर। अच्छा, और इन टर्म्स ऑफ टास्क मूव वहाँ पे परफॉर्मेंस कैसे रहा था? यहाँ पे भी आप कुछ स्टेक बढ़ा चुके ऑलरेडी हैं, एक आइडिया इसके ऊपर भी मैं समझना चाह रही थी, अगर आप मुझे बता पाएं। टास्कमो की परफॉर्मेंस भी हैज बीन वेरी स्ट्रांग। जब हमने इन्वेस्ट किए थे टास्कमो पे एक साल, करीब एक साल के पहले, तब उसका मंथली रेवेन्यू था 3 लाख। अब उसका मंथली रेवेन्यू बढ़ गया है 2 करोड़ तक। तो आप देख लीजिए उसका ग्रोथ किस तरह है, क्वाइट स्ट्रांग। So we will continue to stay invested in Taskmo, and Taskmo also be able to raise some capital and actually get into a hyper growth mode. अग्रीड सर। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे डिस्कस करनी थी इन टर्म्स ऑफ नेट डेट, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे भी नेट डेट में इंक्रीमेंट हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। जो 68 करोड़ था अब बढ़ के हम लोग आते हुए देख रहे हैं 108 करोड़ पे। वजह क्या थी? एक रीज़न आप अगर मुझे बता पाएं। क्या ये तो सिर्फ वर्किंग कैपिटल की वजह से हुआ है। I mean, the growth has been very good. Quarter on quarter growth has been very good, and which is why our working capital has gone up slightly from 68 to about 108 crores. उसी की वजह से गया। ओके, अग्रीड सर। और जो हम लोग मैनेजमेंट चेंजेस देख रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? रिसेंटली हम लोगों ने कृष्ण सूरज मौर्य जी की रेजिग्नेशन देखी है, ये इतना सडन क्यों हुआ था? कोई रीजन था इसके पीछे? वजह तो he wanted to do something on his own. He wanted to do something different. और उसकी his leaving was his personal choice. वो उसकी खुद की personal choice थी। But we must admit कि 2 साल जब the 2 years that he has actually led the company, he has led the company very well. He has put it on a firm track. और जो ट्रैक उसने कंपनी को लगाया है के ऊपर उसने जो कंपनी को लगाया है, हम उसी के ऊपर चलाएंगे। whether it is operational performance, OCF to EBITDA conversion, ROE का जो टारगेट हमने ली थी कि 20% ROE by FY23, we will continue to maintain all of those things. अग्रीड सर। और चूंकि आपने बताया गाइडेंस तो आप देंगे नहीं, एक इंडस्ट्री पैरामीटर्स किस तरीके से ग्रोथ आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये ईयर क्लोज कैसे होगा और FY23 को लेकर किस तरीके से टारगेट सेटअप हो रहा है? करेक्ट। मैं जो बोल रहा हूँ अभी ये तो ऑर्गेनिक ही है, एंड कम से कम 20% ग्रोथ के तो उससे कम तो आना ही नहीं चाहिए। So minimum 20% growth is what we are looking for FY23. No matter what, I mean third wave हो, fourth wave हो, जो भी हो, I mean so 20% के कम नहीं आना चाहिए। अग्रीड सर। और लास्टली इन टर्म्स ऑफ बजट, क्योंकि हम लोग रिसेंटली बजट को आते हुए देख भी चुके हैं, आपकी इंडस्ट्री ने इसको कैसे रिलेटिवली देखा है? एक एनालिसिस इसके ऊपर, क्या मेजर्स हैं जो आप यहाँ से भी चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से लिए जाएं जिसकी वजह से हम लोग सेक्टर में थोड़ा बहुत आउट परफॉर्मेंस देखें? वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव। ये जो कैपेक्स स्पेंड है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड जो गवर्नमेंट कर रहे हैं, ऑल दीज आर वेरी गुड फॉर जॉब क्रिएशन। एक्चुअली the government is focused on employment generation. ये जो मैन्युफैक्चरिंग का जो 60 लाख का जॉब्स का जो वादा किया है गवर्नमेंट ने, all these will actually help us will actually help our business. So the only thing we are looking forward to with the labor codes का जो बात हो रही है बहुत सालों से, उसकी implementation हो जानी चाहिए। हमने बहुत सालों से बात कर रहे हैं, मगर अब तो टाइम आ गया है to get it into action. That is very important for the industry from a longer term perspective.